Let me share my screen once. Can you also see my screen now? Yes. Okay. So, okay. Now. So, welcome to the workshop on OpenCV. Today, I, Shivam, I'm from Mechanical, and along with me, Abhinav, he's from Civil. We will be taking a workshop on OpenCV. Okay. So, let's get started. First of all, what are the contents today we will be covering? Today, first of all, we will be giving a brief introduction as to what is OpenCV, what is image processing, and all. Then we will be talking about different types of images that exist. Then we will also get into the coding part, and we will see how do we read and write images. Then we will be talking about different color spaces also. You will don't worry, now I'm going fast, but we will be talking about this in detail later. ठीक है? एंड देन हम लोग बात करेंगे थ्रेश होल्डिंग एंड मास्किंग के बारे में भी, और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो टास्क आगे देंगे ना, इन टॉपिक्स पे ही बेसिकली बेस्ड होंगे. ठीक है. So let's get started. Next topic. So हम लोग today whatever we'll be doing in Python. And why Python? Because जो हम लोग आज लाइब्रेरी यूज करेंगे वो प्रेजेंट कर दो प्लीज, प्रेजेंट एंड फुल. What? Okay. Now full screen visible now? हाँ भैया. ठीक है. तो हम लोग आज पाइथन में ही सारे काम करेंगे. पाइथन ही क्यों? क्योंकि जो ओपनसीवी है ना, वो लाइब्रेरी पाइथन का ही लाइब्रेरी है, प्री बिल्ट लाइब्रेरी है जो हम लोग यूज करेंगे. एंड व्हाई नॉट अदर लैंग्वेजेस? बिकॉज लाइक इन पाइथन इट्स वेरी सिंपल. If you write one line of code, it's enough for many lines of code in other languages. In other languages, you have to code a lot to just implement a simple function which you will implement in Python. Okay? And also Python has a lot of libraries which are used in robotics, AI, ML. बहुत लोग machine learning करेंगे, तो हम लोग देखेंगे Python का बहुत ज़्यादा यूज है. ठीक है? So आगे मूव करते हैं. So introduction. So image processing. बेसिकली हम लोग आज जो भी टास्क कर रहे हैं उसे इमेज प्रोसेसिंग ही कहते हैं. ओपनसीवी से जो भी टास्क करेंगे, लाइक यू हैव एन इमेज एंड यू वांट टू परफॉर्म सम टास्क्स, लाइक you want to crop it, you want to resize it, or you want to segment a particular color from the image. That is all included in image processing. Now, first of all, you must understand that like humans we understand that ये कलर ब्लू है, ये कलर ग्रीन है, वो आंखों से हमें समझ आ जाता है. बट कंप्यूटर्स को तो ये समझ नहीं आता कि ये ब्लू है या ग्रीन है. डायरेक्टली फ्रॉम विजुअल अपीयरेंस उसे कन्वर्ट करना होगा. दैट इट कन्वर्ट्स द इमेजेस इनटू सम कोड्स और सम एरे ऑफ नंबर्स, and that number represents a particular color or a particular shape, and that is what we will be doing in subsequent slides. How do we do that? I will be telling you in the subsequent slides. Okay, so let's move to the next topic. And so now we start. See, we have basically today we will be talking about three types of images. That is binary, grayscale, and RGB. As you can see the pictures also, that binary picture is like black and white. Then grayscale, it has many shades between black and white. Then RGB, it is basically colored. Okay. RGB, there are also different color schemes, like BGR is also there. I will be talking to you about in detail later. But you can see basically we will be talking about three types of images only: colored, binary, and grayscale. अब बात करते हैं कि डिटेल में बात करते हैं कि होते क्या है और इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी में क्या होता है ना कि सी only there are 2 pixels in binary. We don't represent the binary pictures by an array of numbers, but only by 2 pixels, 2 numbers, 0 and 1. जहाँ पे 0 क्या करता है? 0 represents complete black color, and white represents complete white. Complete white means it's you can say that it is completely white. There is no what you say intensity variation. It is completely white or it is completely black in binary pictures. So binary pictures से तुम समझ ही सकते हो कि ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि या फिर रीजन completely white या फिर completely black है, तो उतने बढ़िया से समझ नहीं आ रहा है. देखो अभी सेम पिक्चर्स we will be trying in different color schemes, and we will see that gradually we can see more detailings in the picture. So next we see grayscale picture. जैसा कि तुम लोग देख रहे हो grayscale picture है ये. तो in grayscale picture it's not just 0 and 1. Here we represent the
picture by a series of number or an array of number from 0 to 255, where 0 is completely black, 255 is completely white, and in between there is intensity. That is, from black to white, as we move, the intensity gradually decreases. In that way, we represent the grayscale picture. Okay. You can see also the picture that now there is more detailing. You can see that there is a stage also out there. Previously, you were able to see only the whitish color of the man and the women. Now, let's move on to the next one. See RGB picture. Now here you can see more detail. Now you can understand that the woman is standing on the table and all this. And how we represent the RGB picture. See, in RGB picture, basically like in grayscale picture, you see. In grayscale picture, even you had an array of numbers for varying from black to white, from 0 to 255. In RGB picture, you basically have three channels for each color scheme. You move from you have for red, you have from 0 to 255, like 0 will represent completely black and 255 will represent completely reddish. So you gradually increase the intensity of reddish color in red color channel. So you have three different color channels for each one, R and G and B. And how do you represent it? I can show you. Wait a minute. See, I will show you once. Let me go to this website. See, like here you can see, I'm choosing the red color. See, this is red color. If I want to represent this number, this color in RGB format, see how I will represent this. This will be basically R. So R will be completely 255 because we are taking the 255, the 255 pixel from the red channel. So it will be represented by this array 255, and from green and blue we will be taking 0 because they have no contribution in completely red. Okay, so this is RGB format of red color. Similarly, you can give for green and blue. Anyone can tell me for green क्या हो जाएगा फिर RGB में? कोई बताना चाहेगा? 0 to 55. ओके, करेक्ट, सही है. और ब्लू कोई बोलना चाहेगा? 0 to 55. ओके, सो ऐसे करके हम लोग RGB फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे. अगर BGR फॉर्मेट होता तो रेड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ कोई? BGR, मैंने बोला BGR फॉर्मेट. 0 to 55. नाइस, सब लोग ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया. चलो, तो वापस हम लोग आगे मूव करते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स गेट इनटू द कोडिंग पार्ट ऑफ इट. अब समझेंगे कि हम लोग ओपन सीवी, मतलब अभी तक तो मैंने बस बता दिया जनरल की इमेजेस के टाइप्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंट कलर स्पेसेस होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ डू वी यूज ओपन सीवी टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस, वेरियस ऑपरेशंस ऑन द इमेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इमेज को रीड ही करना होगा ना. राइट मतलब यहाँ पे ये है कि सेव करना. जैसे तुमने इमेजेस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, देन यू वांट टू सेव दैट इमेज, करेक्ट. तो उसके लिए हम लोग राइट फंक्शन यूज करते हैं. रीड के लिए पहले हम लोग को इमेज टू रीड तो करना होगा ताकि हम लोग उस पर फंक्शंस परफॉर्म कर पाए, इसलिए हम लोग पहले रीड करते हैं. तो देन हाउ डू वी डू दैट, लेट्स सी. सो बेसिकली OpenCV हैज अ फंक्शन cv2.imread that is used to read the image. तो उसमें दो पैरामीटर्स पास होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव द पैरामीटर द पाथ ऑफ द इमेज और the image which you want to perform the functions or you want to read, that is the path of the image. First you give the comma and the flag is basically how do you want to read that image. You give a flag whether you want to read the image as colored image or you want to read the image as grayscale. The flag, if you put the flag as 0, then it will read the image as grayscale. If you put the flag as 1, it will read the image as colored. And आगे देखते हैं, और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, देखो. देन cv2.imshow. देखो पहले तो हमने रीड कर लिया इमेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द इमेज, बट वो इमेज तो डिस्प्ले भी होना चाहिए ना हमारे विंडो पे. तो डिस्प्ले करने के लिए अनदर फंक्शन है cv2.imshow. फर्स्ट ऑफ ऑल वी cv2.imread से हम लोग रीड करते हैं, देन वी डिस्प्ले द इमेज. और डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने इमेज वेरिएबल डिफाइन किया था इमेज, पहले उस इमेज वेरिएबल को पास करते हैं एज अ पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर. एंड फर्स्ट पैरामीटर हम लोग देते हैं एक नेम. इमेज का बस जस्ट विंडो के ऊपर क्या नेम अपीयर होना चाहिए, इमेज का नेम क्या तुम दे रहे हो. तो दैट इज cv2.imshow. ओके, सो अभी रुको, इसका मैं थोड़ा कोड भी दिखा देता हूँ.
सो बेसिकली मैं कोडिंग अभी कोलैब में कर रहा हूँ. कोलैब इज बेसिकली नोटबुक प्रोवाइडेड बाय गूगल. इट्स फॉर फ्री एंड यू कैन यूज इट वेरी इजीली विदाउट डाउनलोडिंग एनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज और जस्ट तुम्हें कोलैब सर्च करना है अपने ड्राइव पे या फिर गूगल पे जाके एक कोलैब नोटबुक खुल जाएगा ऐसा करके तुम्हें, जहाँ पे तुम कोडिंग कर सकते हो पाइथन का आराम से, जो बिना किसी प्रॉब्लम के. बाकी तुम्हें VS कोड भी इंस्टॉल करना है, वो भी काम आएगा. तो मैं इंस्ट्रक्शंस भेज दूंगा इस मीटिंग के बाद कैसे डाउनलोड करना है. प्रॉब्लम आएगी तो बाद में बताना मुझे. बाकी अभी ये देखते हैं यहाँ पे. देखो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग कोलैब में इमेजेस अपलोड कर सकते हैं साइड बार में. यहाँ पे देखो अपने कंप्यूटर से फिर मैंने जैसे इमेजेस अपलोड कर लिया है, यहाँ पे 2-3 इमेजेस अपलोड कर लिया है एंड देन फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. जैसे देखो पहले इंपोर्ट CV2 करना होता है. जो लाइब्रेरी है OpenCV का, उसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने कोड में इंपोर्ट CV2 के द्वारा. तो वो हम लोग पहले इंपोर्ट करते हैं. देन वी फॉर रीडिंग द इमेज आई यूज द फंक्शन CV2.imread. see here and I have put the path of the image. This is my path. I will copy the path and I will put it here. Okay. See, I'm putting the path here. Then I want to read the image as colored. That's why I put the flag as 1. So then CV2. See, I have not used CV2.imshow here because in Colab there is a problem. Colab does not support CV2.imshow. It supports CV2_imshow, and only one parameter it needs. That's why I've given only one parameter. But when you are running in VS Code, the code which I explained in PPT, that code will be used. Okay. So here you would do this. Then CV2.waitKey is basically for how many microseconds or milliseconds it is. It will wait until you close the pop-up window of the picture that will appear on your window. Okay. So that is and CV2.destroy all windows means just close all of whatever the windows has opened and delete it from the memory also. So that is for this. Now I will run the function C. Just shift plus enter, it will run the command. The code is running. See, we got the output. This output. I read this image and I displayed this image, so we got this output. Okay. सब लोग को समझ आ गया ये कोड? Yes. ठीक है, सिंपल था बहुत. लाइक ये हो गया इमेज रीड एंड शो करने का. देन हम लोग कोई इमेज अगर हम लोग इनपुट ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ में इमेज वेरिएबल नाम से इस इमेज को रीड किया था ना, तो अगर उसका हमें शेप देखना है, कैसे देख सकते हैं, तो जस्ट img.shape करने से पाइथन में तुम्हें उसका शेप मिल जाएगा. यहाँ पे जैसे ये पहला जो 1333 पहले तो है जो, वो बेसिकली है कितने बाय कितने का इमेज है. 3 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द चैनल्स, क्योंकि RGB था 3 चैनल्स है, तो यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हम कैसे शेप देख सकते हैं. अब चलो आगे मूव करते थोड़ा. लाइक नेक्स्ट पार्ट हियर. देखो मैं पहले तुम लोग को राइट का भी कोड दिखाई देता हूँ कि राइट कैसे करते हैं. राइट मतलब सेव करना है इमेज. जैसे कि कुछ फंक्शंस परफॉर्म करोगे, फिर उस इमेज को सेव भी तो करना है, तो वो कैसे करेंगे. देखो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज तुम्हें जो भी शेप करना है या फिर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करना है, उसके ऊपर पहले तुम रीड करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द इमेज यूजिंग द फंक्शन imread. Then you perform the operations whatever you want. I have not done anything here. Just I will save that same image only. See. So CV2.imwrite. You just use this command and then you put the path of the destination where you want to save that picture. Okay. So you put the destination, like I want to save the image in my drive. So I put and the folder name also. I put the absolute path or relative path, and then I have also put the image which you want to save. The second parameter is the image, and the first parameter is the path where I want to save it. Okay. So in this way you can save the image also. If I run this command, see, and true has come out because the image has been saved in that path. Now, okay, let's move on to the next topic. See, manipulation of videos. इमरान, एक क्वेश्चन था, वो एक बार दिखा दो तो. Like one student was asking like what was the image variable in the show function. वो एक बार उसको दिखा दो. देखो इमेज रिप्रेजेंटिंग शो फंक्शन, क्या क्वेश्चन था? उसने पूछा है what was the image variable in the show function. तो
बेसिकली इमेज वेरिएबल ओके सी तुम जो इमेज हाँ जब बेसिकली तुम जो भी इमेज रीड कर रहे हो तुमने मैंने स्टोर किया जैसे img इक्वल्स टू, मैंने उस वेरिएबल को डिफाइन किया img इक्वल्स टू, और उस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है उस इमेज का रीड करने का फंक्शन को। तो वही इमेज को, उसी पैरामीटर को, जो भी इमेज को तुमने रीड किया है, सेम पैरामीटर को तुम्हें पास करना है im show में, ठीक है? वो पैरामीटर ही पास होता है। ओके, चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन था? वेट की का क्या नीड है? वेट की सी जैसे कि रुको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने कोलैब में दिखाया, कोलैब में तुम्हें पता नहीं चला, बट जब तुम VS कोड में रन करोगे या फिर कोई और कोड एडिटर में रन करोगे, तो जब तुम, जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेम कोड मैंने अभी VS कोड में मैं रन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इस कोड को रन किया, ये देखो कोड मैंने जैसे रन किया, देखो ये पिक्चर पॉपअप हो गया, मैंने इस पिक्चर को रीड किया था एंड शो किया था, बट ये पिक्चर अभी डिसअपियर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वेट की मैं क्या कर रहा हूँ ना, वेट की 0 देना मतलब इनडिफिनिट टाइम के लिए वेट करना, कि जब तक मैंने कोई भी की प्रेस नहीं किया तब तक ये पॉप्ड अप रहेगा, ये विंडो ऑफ पिक्चर। सो मैंने जैसे ही कोई भी की प्रेस किया ये गया, तो वेट की का यही काम था, ठीक है? समझ गए? ओके तो आगे मूव करते हैं। टिल नाउ व्हाटएवर मैनिपुलेशन हम लोग कर रहे थे वो सब पिक्चर्स पे कर रहे थे, बट वीडियोस पे भी कर सकते हैं, या फिर लाइक यू कैन डू इट ऑन वीडियो फाइल विच इज सेव्ड इन योर कंप्यूटर सिस्टम, और even on live video through your webcam, that also you can do. So how do we do that? I will show you through the code. See basically चलो कोड में जाके मैं उसके तुम्हें समझा देता हूँ। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम वैसे ही CV2 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हो, देन जैसे कि इमेज के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे और इमेज को स्टोर कर रहे थे, जैसे जैसे आई एम रीड कर रहे थे, उससे वीडियो कैप्चर होता है, वीडियो का फाइल को रीड करने के लिए CV2.video capture, यू रीड दैट फाइल एंड देन ये फंक्शन का कुछ काम नहीं था, बस चेक करने के लिए कि वीडियो फाइल रीड हुआ है कि नहीं, मैंने वो लगा दिया था इफ कंडीशन, ठीक है? देन जब वीडियो फाइल, इस बेसिकली वीडियो फाइल हम लोग रीड ऐसे करते हैं, मतलब OpenCV में कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है कि वीडियो फाइल डायरेक्ट रीड कर दे, जैसे कि इमेजेस रीड कर रहा था। यहाँ पे हमें एक लूप लिखना पड़ता है, ठीक है? और लूप के अंदर हमें ऐसे करके डिफाइन करना पड़ता है रिटर्न एंड फ्रेम, दो चीज, एंड कैप डॉट रीड, ऐसे ये सिंटैक्स है। और फिर हम लोग हर फ्रेम को रीड करते हैं बेसिकली इन OpenCV, वी रीड ईच एंड एवरी फ्रेम एंड वी आउटपुट दैट फ्रेम बाय फ्रेम एंड इट गिव्स वीडियो काइंड ऑफ इफेक्ट। तो ऐसे करके हम लोग रीड करते हैं वीडियो इन OpenCV। उसका सिंटेक्स मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पे, तुम लोग देख लेना बाद में। देखो जैसे कि यहाँ पे समझ आ रहा होगा, जैसे कि मैंने व्हाइल लूप चालू किया, फिर अगर मैंने रीड फ्रेम 2 वेरिएबल डिफाइन किया इक्वल्स टू कैप डॉट रीड, अगर रिटर्न ट्रू हो रहा है मतलब रीड हो रहा है फ्रेम, तो ट्रू होगा, और ट्रू होने के बाद मुझे एक फ्रेम दिख जाएगा, CV2.imshow फ्रेम नाम से एक फ्रेम दिख जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ, जैसे वेट की का यहाँ पे भी सेम काम है, जब तक वीडियो चलता रहेगा जब तक मैं भी कोई की प्रेस नहीं किया, और मैंने यहाँ पे 25 दिया है, मतलब हर फ्रेम 25 मिली सेकेंड्स के लिए या फिर माइक्रो सेकेंड्स के लिए रुकेगा एंड देन नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा। तो मैं जैसे रन करके दिखाता हूँ, सी वीडियो फाइल इसने रीड किया, यहाँ पे मैंने रिसाइजिंग क्रॉपिंग वगैरह बढ़िया से नहीं किया, इसलिए वीडियो फाइल सही जितना ओरिजिनल उसका साइज था उसके हिसाब से वीडियो पे दिख रहा है, जिसकी वजह से पूरा क्लियरली विजिबल नहीं है नीचे लोग। और ये वीडियो हमारे रोबोटिक्स क्लब के दिवाली सेलिब्रेशंस का ही था, ठीक है? वीडियो फाइल समझ आ गया सभी को, वीडियो फाइल कैसे रीड करते हैं? एंड रुको मैं एक और बता देता हूँ, जैसे कि देखो ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, देखो नाउ वो तो मैंने फाइल से रीड किया था वीडियो, बट इफ यू वांट टू रीड द वीडियो थ्रू लाइव वीडियो थ्रू योर कैप्चर लाइव वीडियो थ्रू योर कैमरा वेबकैम, so then instead of passing the parameter as your video path in the CV2.video capture, you put 0 or 1. 0 जनरली 0 होता है क्योंकि तुम्हारे कैमरा का जो भी नंबर होता है और 0 नंबर ही होता है, तो कैमरा तो होता नहीं लैपटॉप में ज़्यादातर, तो 0 यू पुट इट बेसिकली एज अ पैरामीटर, देन तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा वेबकैम खुल जाएगा एंड तुम्हारा वीडियो तुम देख पाओगे स्क्रीन पे, ठीक है? मैं रन करके भी नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग खुद ट्राई करना है, ठीक है? समझ आ गया सर का वीडियो? जी भैया। ठीक है, ओके चलो अगले टॉपिक पे जाते हैं। शिवा में क्वेरी है, चैट में क्वेरी है
वेट की के बाद वाला आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पूछा। क्या वीडियो के वेट की मतलब तुम लोग अनम्यूट करके भी डाउट पूछ सकते हो अगर तुम्हें डाउट हो तो, क्योंकि मैं अभी चैट्स देख नहीं पा रहा हूँ। क्या क्वेरी था ये? वो 25 मिलीसेकंड्स के बाद वाले आर्ग्यूमेंट्स के बारे ओके में। देखो ये मैंने देखो यहाँ पे मैंने जो डाला है ना ये नेसेसरी नहीं था। 0xFF तुम्हें जो दिख रहा है ये हेक्साडेसिमल बेसिकली एक नंबर है जो जिसका नेसेसरी नहीं था। बस मैंने यहाँ पे इसको इसलिए डाल दिया है क्योंकि मैंने ये कोड सेम कोड मैंने कोलैब में भी किया था और मैंने लिनक्स में भी किया था। तो क्या होता है ना कभी कभी सेम नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे ऑन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स लाइक लिनक्स में विंडोज में। सो ये 0xFF डालते हो ना तुम, क्या होता है ना फिर एंड ऑपरेशन बेसिकली एक बिटवाइज ऑपरेशन होता है एंड ऑपरेशन। उससे क्या होता है कि हमेशा इन दोनों का एंड ऑपरेशन बिटवाइज करोगे तो फिर एक जो नंबर आउटपुट आएगा उसका वैल्यू हमेशा स्काई वैल्यू जो होगा क्यू के बराबर होगा, क्यू अल्फाबेट। तुम्हें अभी ये ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा या फिर कुछ नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी नीड नहीं थी, मैंने बस डाल दिया। ठीक है, तुम इसे हटा भी सकते हो। बेसिक पीपीटी पे मैंने सिंप्लीफाइड कोड ही दिया है तो तुम लोग वो देख लेना, इसकी नीड नहीं थी मगर। ठीक है, तो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स में बेसिकली यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए मैंने वो डाला था ताकि कोड सब जगह रन हो जाए। ठीक है, चलो चलो नाउ कलर स्पेसेस। Till now we talked about different types of pictures, then different types of representations of picture. Then we talked about how to read and write images in OpenCV. Then also how to read and write the videos. Yeah. Now we will talk about different color spaces, and it is very important because when you are performing many tasks like segmentation on images. Segmentation means separating a particular color from the image or particular part from the image. Then you will need to know which color space will be more feasible, because if you want to perform some operations that might become computationally very expensive, मतलब computationally बहुत ज़्यादा heavy हो जाएगा क्योंकि 3 कलर चैनल्स है बट तुम्हें कलर इमेज की वहाँ पे नीड ही नहीं थी, वहाँ पे बहुत छोटी ऑपरेशन करनी थी। देन तुम ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर लो ना, ज़्यादा आसानी होगा। तो इसलिए कलर स्पेसेस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कलर स्पेसेस जैसे डेफिनेशन में देख लेना, तो कलर स्पेस तुम लोग समझ रहे होंगे। देखो बेसिकली हमारा एरियाज ऑफ इंटरेस्ट ओनली 3 कलर स्पेसेस है, RGB, BGR एंड HSV। इन 3 कलर स्पेसेस के बारे में जानने से हमारा काम हो जाएगा रोबोटिक्स में। ठीक है, इतना ही हमें ज़्यादातर नीड पड़ती है। सो RGB एंड BGR, सी इन RGB एंड BGR मैंने जैसे पहले भी समझाया था, बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट कलर चैनल्स एंड दोज 3 कंट्रीब्यूट टू गिव अ पार्टिकुलर कलर इफ यू वांट। लाइक if I want color between orange, like I want, then that combination will be between of red, blue, green, all will contribute some color. Like I had given the example of red. The red was in RGB was 25500, but if you want to represent some other color other than red, blue, green, then the other pixel will not be 00, it will be some values between 0 to 255. Okay, in that way represent the different colors in RGB and BGR color space। और यहाँ पे किसी का क्वेश्चन नहीं आया मगर कि RGB एंड BGR मतलब दोनों क्यों पढ़ना पड़ रहा है? किसी को क्वेश्चन आ रहा है ऐसा मन में? एक ही से तो काम बन जाता। बताओ, कोई बोलना चाहेगा इसका आंसर कि RGB एंड BGR दोनों क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो OpenCV में क्या होता है ना कि जो भी पिक्चर तुम रीड कर रहे थे अभी तक हम लोग कर बाय डिफॉल्ट BGR फॉर्मेट में रीड होता है। ठीक है, अगर तुम लोग चैट्स में कुछ भेज रहे हो तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तुम लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि RGB फॉर्मेट में जो भी हम लोग OpenCV में रीड कर रहे थे अभी तक इमेजेस, वो बाय डिफॉल्ट BGR फॉर्मेट में रीड होता है, इसलिए हमें BGR के बारे में भी पढ़ना पड़ रहा है। बाकी ओरिजिनली जो भी पिक्चर स्टोर होता है मोस्टली RGB फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट BGR आल्सो बिकॉज़ वी आर यूजिंग OpenCV। ठीक है, देन HSV कलर स्पेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम लोग जब टास्क करोगे तब पता चलेगा। इसमें क्या होता है ना, HSV अनलाइक RGB एंड BGR वेयर 3 डिफरेंट कलर चैनल्स वेयर देयर, हियर यू हैव 3 डिफरेंट थिंग्स कॉल्ड ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। ह्यू मींस तुम लोग जैसे पिक्चर से देखो यहाँ पे, ह्यू बेसिकली मींस द डोमिनेंट कलर, मतलब तुम डिसाइड करते हो कौन सा कलर तुम्हें चाहिए तो उस कलर की तरफ तुम वो कलर सिलेक्ट करते हो। ह्यू इज दैट डोमिनेंट कलर। ओके, हियर ओनली ह्यू इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द कलर। ठीक है,
Then saturation means the intensity of color. That means how white it is, or how exactly the dark color that you want to get. And value means chromatic notion मतलब क्या हो गया कि blackish से उस कलर की तरफ मूव करना. जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो तुम लोग, यहाँ पे पिक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा. देखो वैल्यू जैसे कि ब्लैकिश से हम लोग कैसे उस कलर की तरफ मूव कर रहे हैं. तो HSV कलर स्पेस यही होता है. ठीक है, अभी हाँ आ जाओ. नाउ सी, मैंने जैसे बोला था कि तुम्हें हमेशा सेम कलर स्पेस में नहीं चाहिए होगा, कभी कभी कन्वर्ट करना होगा कि इस कलर स्पेस से उस कलर स्पेस में जाओ, काम आएगा ताकि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव ना हो ज़्यादा. और जैसे कि सेगमेंटेशन करोगे तो वहाँ पे HSV कलर स्पेस ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, क्योंकि HSV में क्या फ़ायदा है कि तुम कोई एक पार्टिकुलर कलर आराम से निकाल सकते हो, अनलाइक रेड, ग्रीन और ब्लू जहाँ पे पिक्सेल्स वैल्यूज डिफाइंड रहते हैं. यहाँ पे बस कलर तुम ह्यू के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी एक कलर. ओके, सो अब चेंज करना सीखना पड़ेगा. जैसे कि चेंज करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, जस्ट यू राइट cvt color, cv2.cvt color. इससे क्या होता है कि तुम अपने पुराने इमेज को जो भी नए फॉर्मेट में देखना चाहते हो या फिर कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो. उसके लिए बस तुम्हें करना पड़ेगा, 2 पैरामीटर्स पास करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल you pass the image which you want to visualize as the different color scheme. First of all, you input that image as the first parameter. Then the flag is basically you want to convert it to grayscale, you want to convert it to RGB, or you want to convert it to HSV. As you can see, the flags can be first of all, if you want to convert the BGR, because by default OpenCV reads the image as BGR. So if you want to convert the BGR to gray, then you use the first flag as it is written there, cv2.color_BGR to gray. Similarly to RGB, you can use this function. Similarly for HSV. Okay. Now I will show you how to do those using codes only. Also, don't worry. See. कलर स्पेसेस. ठीक है, देखो मैं जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नहीं फंक्शंस नहीं लिखा, यहाँ पे बस मैंने लिखा है रीड और शो. तो उससे देखना बाय डिफॉल्ट RGB BGR फॉर्मेट में ही आएगा. ये देखो इमेज को. See, this is a BGR format. Now same image I will show you in RGB and HSV format. See, HSV format. This is just for visualization. RGB format देखो तो. See, this is the RGB format and this was the BGR format. See the color difference, because the problem has happened because the color just the when you passed RGB and BGR, just the pixels got what you say swapped. There was nothing else. That's why you are not getting the original image in RGB, but bluish type of shade of faces and skin because of the swapping of the pixels in RGB and BGR. Okay. Now HSV में अगर देखें सेम पिक्चर को without any modifications. See, this is the HSV format. तो पता चल रहा है HSV format ये हो गया सेम पिक्चर का. Now अब conversion देखते हैं. See, if you want to convert, I already told you how to convert. See, for grayscale picture, you can use two things. You can either directly read the image as grayscale. I already told you in the beginning that in the cv2.im read, you can pass another parameter as 0 or 1, where 1 will define the image to be as colored, or 0 will make it grayscale. So directly you can put 0 there, or you can use this function. See, I have just commented this out. You can directly use this function. This will convert BGR to gray. If I run this command, see, now the same picture will be. What's the problem? Okay. Path is wrong, I guess. No. Wait. Okay, see, this was the grayscale format of that image. Now, if we move to RGB format, then again, let me correct the path. See, the original image was as BGR. Now we are converting to RGB format. Now what we are doing first, we are passing the image as parameter, and the second parameter will be BGR to RGB, convert it to RGB. So then we can show it, then wait key and all, same functions.
See, this is the conversion. I already showed you how this would look initially, but now we are doing the conversions. See, colored VGR to RGB, then what HSV format. See, we can convert the same thing to HSV. Just here you need to change from BGR to RGB to BGR to HSV. Okay, then you can get, see, you can convert this also. What's the problem? Okay, image path is wrong. So it's converting. See, HSV format. Now we converted the same image to HSV format. So in this way we do different types of color schemes conversion. Okay, clear है सबको? हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, चलो। ये सब बहुत सिंपल चीज है, बट काम आती है बहुत, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रिसाइजिंग एंड क्रॉपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तुम पिक्चर्स को एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हें क्रॉप करना होगा, बहुत बार रिसाइज करना होगा टू परफॉर्म योर ऑपरेशंस, और जो टास्क हम देंगे या फिर जो टास्क तुम्हें फ्यूचर में परफॉर्म करना होगा, उसके लिए तुम्हें क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग करना होगा पिक्चर का। ओके, सो कैसे करते हैं? देखो, रिसाइजिंग के लिए CV2 के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, उसी लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है CV2.resize। सो उसमें क्या पैरामीटर्स पास होते हैं, उसके दो, देयर आर टू वेज टू डू इट। ओके, first of all, you can directly pass the parameter as the image which you want to resize, and then you can basically pass the size. New x and new y means by what size you want. Like initially the size, if the size was 600 cross 400, now you want the size to be 300 cross 200, then you put the new x and new y, and then you get the image. Okay, in this way you resize the image. Then if you want to wait a minute. Okay, see, then there is another way. Another way is the second one which I have written here. See, CV2.resize. Similarly here also you pass the first parameter as the image on which you want to resize it, and then the second parameter is basically there are three parameters in it. Okay, the second parameter is basically the placeholder. That means the location on the image about which you want to resize it. Okay, like here I put 00. That means the origin, the pictures top left corner, around that it will be resized. And fx and fy, there are two terms, that it is a ratio basically about by how much you want to resize. If I put fx equals to 0.5, fy equals to 0.5, that means it will size will decrease to half along x and along y. Those are the parameters in the second way of doing resizing. Okay, I will show you by coding also. Wait, see. See, I read the image using the same way I told you earlier. Then I showed the image. Then I have used both the methods here. See, the first method is I input the image as the parameter. Then the second parameter is the size. By what size do I want the image? Then second method will be like I put 0.5, 0.5. So I will show you it. I will show you the output. Then you will understand more clearly. See, this was the original image. First of all, this was the original image. I showed it. It was given the command that show the original image also. Then I resized it by 300 to 200. Original image was of a higher size. Then I resized it. Then again I used method 2. For method 2, let me show you. Wait a minute. See, method 2, basically you decrease the picture. Originally picture was this much bigger, but now you resized it to 0.5 times in x direction and 0.5 times in y direction also. This was the resized image. Okay, so understood resizing and what parameters you need to pass? हाँ भैया, ठीक है, nice. Okay, next cropping we have. क्रॉपिंग से पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहूंगा। नमपाई, किसी को आइडिया है नमपाई क्या होता है?
नहीं आइडिया कोई बात नहीं। देखो numpy भी एक, जैसे कि OpenCV एक लाइब्रेरी है पाइथन का, वैसे ही numpy भी एक लाइब्रेरी है पाइथन का, जिसके थ्रू तुम एरेज, बेसिकली एरेज डिफाइन कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स के। एंड एरेज डिफाइन करना क्यों बेनिफिटेबल है, क्योंकि तुम जो नॉर्मल लिस्ट के थ्रू एरेज डिफाइन करते हो इन पाइथन, दैट इज कंप्यूटेशनली मोर एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा स्पेस लेगा। बट numpy से तुम जब यूज़ करते हो तुम्हारा काम एफिशिएंट हो जाता है। तो numpy भी एक लाइब्रेरी है पाइथन का, जिसे हम ऐसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np, ऐसे तुम इंपोर्ट करते हो एंड देन तुम एरेज डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने नीचे किया है। देखो एक एरे जैसे np.array, एंड ये बेसिकली एक एरे है, ठीक है, जैसे लिस्ट में तुम लोग डिफाइन करते हो वैसे ही, बट यहाँ पे np.array फंक्शन से तुम लोग डिफाइन करते हो, जिससे तुम्हारा काम एफिशिएंट हो जाता है। तो अब क्रॉपिंग जैसे ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि क्रॉपिंग का के लिए कोई भी फंक्शन numpy उसमें OpenCV में नहीं है। क्रॉपिंग हम लोग डायरेक्टली OpenCV के कोई फंक्शन से नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। देखो क्रॉपिंग के लिए जैसे यहाँ पे cv2.resize है, जैसे वहाँ पे कलर कन्वर्जन के लिए cv2.cvt2 कलर कन्वर्जन के लिए डायरेक्ट वहाँ पे फंक्शन था, बट क्रॉपिंग के लिए कोई ऐसा फंक्शन OpenCV में नहीं है। तुम इसे numpy स्लाइसिंग के थ्रू करते हो, मतलब तुम डिफाइन करते हो कि इन x डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक तुम्हें स्लाइस करना है, कितने जगह तक तुम्हें क्रॉप करना है। देन इन y डायरेक्शन ऑल्सो डिफाइन कि मुझे इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक रिसाइज करना है, इस पिक्सल से इस पिक्सल तक रिसाइज करना है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, देखो बेसिकली क्रॉप्ड इमेज के लिए मैंने numpy स्लाइसिंग किया है। तो इट हैज 2 पैरामीटर्स, इमेज, फर्स्ट ऑफ ऑल द इमेज ऑन which you want to crop, then you put the square brackets, and ये x का कोऑर्डिनेट बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है पहला वाला, कि 10th पिक्सल से 900 पिक्सल तक मुझे क्रॉप करके दो, एंड 120 से 700 पिक्सल तक मुझे क्रॉप करके दो इन y डायरेक्शन, ठीक है। ये पैरामीटर्स बेसिकली क्रॉपिंग के लिए है, और ये numpy के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। रुको मैं कोड भी दिखा देता हूँ। numpy जैसे कि ये रहा क्रॉपिंग के लिए, देखो मैंने यहाँ पे जैसे कि क्रॉपिंग के लिए करके रखा है कि एक डायरेक्शन में 100 to 500 तक मुझे पिक्सेल्स तक मुझे काट के दो, एंड 200 to 500 इन y डायरेक्शन। देन शो करेंगे, ये देखो ये रहा, ये सेम पिक्चर मैंने क्रॉप कर लिया, बस छोटा सा हिस्सा देखो आ गया। समझ आ गया क्रॉपिंग? हाँ भैया। गुड, चलो सिंपल टॉपिक्स है मगर तुम्हें बहुत काम आएगा, ठीक है। अब आगे के टॉपिक्स तुम्हें अभिनव भैया समझाएंगे, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हो तो अभी बताओ, नहीं तो फिर लास्ट में वापस हम लोग क्वेश्चंस तुम लोग पूछ सकते हो वापस। अभी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग पहले आगे का टॉपिक्स कर लेते हैं। क्या सब क्लियर है भैया? ठीक है, ठीक है, आगे का टॉपिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अभिनव, यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। हाँ, स्क्रीन विजिबल है आई गेस, राइट? हाँ भैया। ओके ओके, सो पहला टॉपिक मेरी तरफ से थ्रेशोल्डिंग, ठीक है। तो आई गेस तुम लोगों ने JEE में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो थ्रेशोल्ड मतलब क्या है? एक लिमिट है, राइट? एंड मतलब अ लिमिट ऑन समथिंग। तो यहाँ भी थ्रेशोल्डिंग का मतलब वही है, इट्स बेसिकली पार्टीशनिंग ऑफ इमेजेस ऑन द बेसिस ऑफ पिक्सेल ग्रेस्केल वैल्यूज। तो वो क्या होता है, हम अभी हाँ इधर पहले फंक्शन समझा देता हूँ मैं। तो दिस इज अ थ्रेशोल्ड फंक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेशोल्डिंग, देयर इज अ ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग एंड देयर इज एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग व्हिच इज ऑफ अगेन टू टाइप्स, गॉसियन एंड मीन। तो ये ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग का फंक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो cv2 द थ्रेशोल्ड इमेज कॉमा थ्रेशोल्ड वैल्यू कॉमा मैक्सवेल कॉमा फ्लैग, राइट? तो ये तो इमेज है, वो सोर्स इमेज which you guys will be performing thresholding on. This is a threshold value. Threshold value means that limit. Abhi wo like that value is something which we apply on each and every pixel of a image. Like suppose you get an image, suppose this was the image, right? This image on that is global thresholding. Like that's the type of thresholding that's called global thresholding. So
तुम हर एक पिक्सल पे वो जब लगाओगे तो सपोज मैंने वैल्यू दे दिया है 175, पिक्सल का वैल्यू 0 से 255 तक होता है इफ इट्स ग्रे स्केल, राइट? तो हाँ, एक और ये जो थ्रेशोल्डिंग है, यू अप्लाई दिस ऑन सिंगल चैनल इमेजेस। सिंगल चैनल मतलब ग्रे स्केल इमेजेस या फिर बाइनरी इमेजेस। तो सपोज मैं ग्रे स्केल इमेजेस की बात कर रहा हूँ अभी, तो उसमें क्या होगा, अभी थ्रेशोल्ड वैल्यू व्हेन यू पुट 175, तो उससे ऊपर या उसके इक्वल टू जो भी पिक्सल वैल्यूज होंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड टू दिस मैक्सवेल वैल्यू दैट यू स्पेसिफाई। ये भी तुम्हें स्पेसिफाई करना होगा। ये सपोज तुमने 255 डाल दिया, तो greater than equal to threshold value pixels will all get converted to this max value, and जो उसके नीचे होगा, all those will be converted to 0। ठीक है, ये जो flag parameter है, ये basically in different types of thresholding के outputs को बोलते हैं। तो here suppose this is thresh binary, this will be the normal threshing that I told you, means greater than equal to the value will get converted to maxwell and rest will be converted to 0। थ्रेश बाइनरी इनवर्स में क्या होता है, उल्टा होता है। जो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू है, दोस विल बी कन्वर्टेड टू 0 एंड मैक्सवेल एंड द ones which are lesser than the threshold value will get converted to Maxwell। So यहाँ पे examples given है। हाँ, sorry, yes, this is the suppose original image। So when we apply binary thresh, so ये जो black था, वो black region के आसपास वाला values 0 के close है, right? तो सपोज 170 थ्रेशोल्ड वैल्यू था, तो 170 इज क्लोज टू प्योर व्हाइट। तो ये जो वैल्यूज पिक्सल वैल्यूज थे जो 0 के क्लोज है, 170 के तो नीचे होंगे ऑफ कोर्स, सो दे विल बी कन्वर्टेड टू प्योर ब्लैक, प्योर 0। एंड द वंस व्हिच वर क्लोज टू व्हाइट, दैट इज 255, मतलब 170 के ऊपर है, दोस विल बी कन्वर्टेड टू प्योर व्हाइट। एंड रिवर्स हैपेंस इन केस ऑफ बाइनरी इनवर्स। और बाकी ये 3 और डिफरेंट टाइप्स है आर्ग्यूमेंट्स, मतलब फ्लैग आर्ग्यूमेंट के डिफरेंट टाइप्स है, तो वो तुम लोग खुद अप्लाई करके देख सकते हो। तो अभी मैं एक बार कॉलैब में दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो सपोज so you need to convert the main image into a grayscale image, okay? Because as I said, thresholding का जो ये function है, dot threshold, तो OpenCV का, that only works on single channel images। So you'll convert it to grayscale image। Then here I'm applying global thresholding। इसका function तुम देख लो, ये CV dot threshold, ये तुम्हारा threshold value है, ये max value है, और ये type of thresholding, मतलब थ्रेश बाइनरी इधर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसा मैंने बोला था। एंड इट रिटर्न्स 2 थिंग्स। वन विल बी द थ्रेश्ड इमेज, जो थ्रेशोल्डिंग के बाद जो इमेज मिलेगा वो इमेज रिटर्न करेगा, और इधर एक और आर्ग्यूमेंट रिटर्न होता है, वो तुम्हारा थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब 127 ही वैल्यू को रिटर्न करता है, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए इधर, तो आई एम नॉट स्टोरिंग इट, आई एम जस्ट पुटिंग अ ब्लैंक हियर। So I'll run this and show you। So this is the result of global thresholding। Global thresholding में ये होता है कि the threshold value that you have specified here 127, वो threshold value का use करके ही हर एक पिक्सल ऑफ द इमेज पे ये काम करता है। मतलब हर एक पिक्सल को चेक करेगा ये 127 के से ज्यादा है कि कम है, and accordingly it will modify। But then we come to the next type of thresholding that is called adaptive thresholding, which is of again 2 types, mean and Gaussian। तो इसमें से I'll say that compared to global thresholding, adaptive thresholding is better because it handles differential lighting of an image। Differential lighting मतलब कैसे समझाओ? When you click a picture of anything, then you'll see that even though the picture may be of uniform color, मतलब एक red color का chair है, suppose you are keeping it in a room and clicking its picture, the red color is constant throughout, uniform throughout, but due to differential lighting, मतलब lighting का difference होने के कारण एक red, मतलब थोड़ा सा portion of the chair will seem more reddish compared to the other portion। तो तब जब तुम ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग अप्लाई कर दोगे, देन इट्स नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, राइट? क्योंकि कुछ जगह में तो तुम्हारा थोड़ा सा लाइटिश या डार्किश था ओरिजिनल इमेज में, तो देन वी कम फॉर एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग।
here what happens is that here arguments में समझा देता हूँ. So CV dot adaptive threshold you apply. This will be the source image. This will be the max value. मतलब तुम जो यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं, थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम मैक्स वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट. जिस मैक्स वैल्यू तक तुम पिक्सेल्स को उठा देना, you want to like change the pixel values to which are greater than the threshold value. तो इधर थ्रेशोल्ड वैल्यू क्यों हम अप्लाई नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे खुद थ्रेशोल्ड वैल्यू ईच सेक्शन के लिए अप्लाई हो जाता है. कैसे समझाऊं मैं वो? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिस इज द CV dot adaptive threshold mean. तो ये तुम स्पेसिफाई कर रहे हो कि तुम एडाप्टिव थ्रेशोल्ड का मीन जो वर्जन है उसको अप्लाई कर रहे हो. देन कम CV dot binary thresh, मतलब तुम क्या करना चाहते हो, इनवर्स थ्रेश की नॉर्मल थ्रेश. और ये ब्लॉक साइज, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक साइज. तो ब्लॉक साइज व्हेन वी आर स्पेसिफाइंग 11, इट बेसिकली ब्रिंग्स यू अ मैट्रिक्स ऑफ दिस काइंड. जो 2 डायमेंशनल एरे होता है, हाँ, तो उसको कर्नल बोलते हैं. तो it produces a matrix of this kind of size 11 pixels. Okay, तो क्या होगा कि इस कॉर्नर पे, इस मतलब ये जो पिक्सल है उसके इर्द गिर्द, मतलब सराउंडिंग दिस पिक्सल, one of rectangular array will be created. और उस एरे के अंदर जितने भी पिक्सेल्स है, तो उन पिक्सेल्स का वैल्यूज का मीन निकाला जाएगा, और जो मीन वैल्यू होगा वो इस पे एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू यूज किया जाएगा. इसीलिए वी आर नॉट यूजिंग अ थ्रेशोल्ड वैल्यू. सो अकॉर्डिंगली दैट पिक्सल विल देन गेट मॉडिफाइड टू 255 और 0. और ये जो कांस्टेंट c is equal to 2 है, तो वो बेसिकली इस फॉर्मूले में आता है, मैं शो कर देता हूं. सो हाँ, यू कैन सी दिस फॉर्मूला, मीन ऑफ नेबरहुड पिक्सेल्स माइनस कांस्टेंट. सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द थ्रेशोल्ड, वहाँ पे मैंने जैसे बोला उस रेक्टेंगल का मीन निकालेगा, द मीन ऑफ ऑल द पिक्सेल्स व्हिच आर इनसाइड द रेक्टेंगल माइनस दैट कांस्टेंट दैट यू स्पेसिफाई. दिस कांस्टेंट बेसिकली हेल्प्स टू कंट्रोल नॉइज इन द इमेज. अभी नॉइज क्या है, तुम ये देख सकते हो कि इस इमेज में ऐसे बहुत छोटे छोटे डॉट्स आ गए, राइट, डॉट्स आ गए, इरेगुलरिटीज. तो दीज आर नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, वो अनवांटेड है. तो those are called noises. So when you increase the C or decrease the C according to your type of image, it will help to diminish those irregularities. तो वो दिखाई नहीं देंगे, तुम्हें पूरा प्लेन मिल जाएगा. Okay, so that was the mean thresholding. तो उसके बाद गॉसियन थ्रेशोल्डिंग. गॉसियन थ्रेशोल्डिंग में भी सेम है. एक तुम्हारा ऐसा रेक्टेंगल बन जाता है, इस सपोज ये एक पिक्सल है, इसके अराउंड एक रेक्टेंगल बन जाएगा. तो उस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी पिक्सेल्स होंगे उनका गॉसियन वेटेड सम कैलकुलेट होता है. तो अभी गॉसियन वेटेड सम क्या है वो मैं इधर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन वो तुम गूगल करके देख सकते हो. एक्चुअली वो थोड़ा अभी के लिए वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और वो सिंपल चीज ही है. तुम लोग को सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा पता रहेगा, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं. You just apply and see. हमें इतना डीप में अभी घुसना नहीं, because we are just talking about the practical applications. तो इसको मैं रन करके अभी दिखा देता हूँ. तो बेसिकली तुम अगर पूछोगे कि which is better, like best among all these three, I would say adaptive Gaussian thresholding. बिकॉज ऑलरेडी ये एडाप्टिव है, तो ये पार्ट बाय पार्ट इमेज पे वर्क करेगा. मतलब वो जो रेक्टेंगल मैंने बोला ना फॉर्म होता है, तो वो ईच पिक्सल के अराउंड फॉर्म होगा. 11 साइज का, 11 साइज कैसे फॉर्म होते होते उनको चेंज करते जाएगा. और क्योंकि वो सराउंडिंग एक पिक्सल के सराउंडिंग पिक्सेल्स को लेता है, तो इट परफॉर्म्स मच बेटर compared to you applying a single threshold on the entire image. तुम देख सकते हो यहाँ पे सिंपली ये पूरा ब्लैक कर दिया, ये सिर्फ व्हाइट रह गया, बट यहाँ पे तुम ज्यादा बेटर तुम देख पा रहे हो. ये मीन था और ये एडाप्टिव गॉसियन इज द बेस्ट अमंग ऑल दीज, क्योंकि उसमें नॉइज हैंडलिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट थ्रेशोल्डिंग. एनीवन भैया हाँ यस. जब एडिटिव आपने किया तो उस केस में तो इंक्रीज हुआ ना नॉइज. कौन सा? गॉसियन वाला. हाँ नहीं, नॉइज इंक्रीज कहाँ? एक सेकंड.
नहीं गॉसियन नॉइज एक्चुअली तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, नॉइज डिक्रीज ही हुआ एक्चुअली गॉसियन में अगर देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये नॉइजी फीचर था, ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये मीडियन मीन वाला था, तो गॉसियन में वो हट गया है थोड़ा सा, यू कैन सी। मैंने यहाँ पे ये बहुत छोटा रखा है, kept this value really small. When you change it by a large amount, you will get to see the difference. Abhi you will not be able to see all differences because they are very minute. Like as I said, this thing, it's working on this thing. And Gaussian का main चीज I talk about, not only noise handling, it handles lighting difference much better. क्योंकि ये देखो, मतलब this may not be very prominent, but you can see here, see. दिस स्लीव, ये जो स्लीव है ना, ये पूरा ब्लैक है, राइट? तो इधर ये इमेज पे देखो, ये स्लीव एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है, देयर इज अ ब्लैक आउटलाइन बट देयर इज अ डार्किश, मतलब ये जो उसके हाथ पे ये जो थोड़ा सा रेडिश पोर्शन है उसमें ग्रेइश टाइप का है, राइट? तो वो तुम मीन में देखो, मीन में पूरा ब्लैक हो गया, राइट? पूरा ब्लैक हो गया, बॉर्डर के साथ ये रीजन भी पूरा ब्लैक। बट एडाप्टिव में देखो, ये नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, इट्स ट्राइंग टू show that difference in lighting. So that is, sorry, Gaussian. So that is why Gaussian is the best among all the three. So when you are applying, I would suggest कि तुम पहले तो of course you guys just apply all the three, then you will get to see the difference on your own. So okay, so anyone has any other doubts? भाई ये थ्रेशोल्ड का फायदा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सर? हाँ मतलब क्या हेलो, मतलब ग्रे स्केल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या? हाँ, ग्रे स्केल टू बाइनरी, रीजन क्यों क्या है मतलब ये कन्वर्जन का? द रीजन इज दैट whenever we perform any tasks of like computer vision, like image segmentation हो गया, image object detection हो गया, तो उसमें our computer processes, तुम्हें पता है computer is basically much more मतलब क्या कैसे बोलूं, how can I say, it's really more efficient with binary digits 0 and 1, right? So जब तुम एक बाइनरी इमेज बनाओगे तो वो कंप्यूटर को प्रोसेस करने में ज्यादा आसानी होगी, तो कंप्यूटेशनली इट विल बी फास्टर, और डिस्टिंग्विशिंग में भी मतलब इजियर होता है कंप्यूटर के लिए। सो दैट्स द रीजन वी आर अप्लाइंग थ्रेशोल्ड। ओके भाई, ओके, सो आई गेस वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिटवाइज ऑपरेशंस। तो आई गेस तुम लोगों को पता तो होगा बिटवाइज ऑपरेशंस क्या है, लाइक बिटवाइज नॉट एंड और लॉजिक गेट्स वगैरह में तो मिला होगा, राइट? ओके, यस, आई होप सो। सो यहाँ भी वही चीज है, बट हियर विल बी डीलिंग विद पिक्सेल्स। ओके, सो मैं दिखा देता हूँ कॉलर में। सो हाँ, सो हियर I'm writing this command blank is equal to np.zeros 400, 400, data type is equal to u in it. So this is basically creating a black color blank screen. Okay, and then the next command here, white rect is equal to cv.rectangle. So this will be used to create a rectangle. Okay, we'll be sharing the caller files, don't worry. So this command basically helps us to create a rectangle. अच्छा, मैं पहले rectangle और circle का दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो हाँ, here, so this is the cv2.rectangle command. इसके arguments क्या है? Image, the image on which you want to draw the rectangle on. Point one is the top left corner of the rectangle. You have to specify its coordinates मतलब. So point 2, bottom right corner of the rectangle, color of the rectangle that you want to give, and thickness. मतलब rectangle का जो border होगा उसका thickness कितना देना है. If you specify -1, then you will get a filled up rectangle. मतलब जो color तुम specify करोगे उस color से उस rectangle को पूरा fill कर देना. तो अभी I'll be drawing a blank screen here. Blank screen के लिए क्योंकि मुझे white चाहिए था, I'm using this command. You guys can look it up, like ये कुछ है नहीं, तुम खुद ही करोगे तो समझ में आ जाएगा।
तो मैंने ब्लैंक स्क्रीन ड्रॉ किया, CV2 शो किया। उसके बाद मैंने रेक्टिकल टू CV.rectangle, यहाँ पे मैं आई डॉट का कॉपी यूज कर रहा हूँ। ये जो ब्लैंक इमेज मैंने क्रिएट किया व्हाइट कलर का इमेज, उसका कॉपी यूज कर रहा हूँ सो दैट ओरिजिनल जो ये आई ब्लैंक इमेज है उस पे कुछ इफेक्ट ना करे, क्योंकि मैं बाद में सर्कल में भी सेम ब्लैंक इमेज के ऊपर सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो हियर आई एम ड्राइंग अ रेक्टेंगल, आई स्पेसिफाइड द विड्थ 1, कलर एज 0, 0 मींस हियर इट विल बी ब्लैक। तो उसके बाद आई एम ड्राइंग दिस रेक्टेंगल एज यू कैन सी। तो ये गाइस, ये तुम लोग करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये CV2.circle है, इसमें तुम्हें सेम इमेज फिर सेंटर लोगे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0.1 एंड 0.2 और एंड रेडियस, कलर, थिकनेस, एवरीथिंग इज। तो यहाँ पे थिकनेस में मैंने -1 जब दिया है तो इट विल गेट फिल्ड अप, तो वो पूरा फिल हो जाता है। तो वही डिफरेंस है, यहाँ पे भी अगर यू गिव -1 तो द रेक्टेंगल विल गेट फिल्ड। तो ये तो दैट वाज ऑल। तो हाँ, तो इधर आते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वैसे सर्कल और एक रेक्टेंगल बना लिया है। आई विल बी शोइंग यू 10 रेक्टेंगल पहले दिखा देता हूँ मैंने कौन सा रेक्टेंगल बना। सो दिस इज इट। There is, I created a black color blank screen here, nb.zeros because zeros is in black. तो ये ब्लैक कलर का स्क्रीन, उसके अंदर एक व्हाइट फिल्ड रेक्टेंगल ड्यू टू दिस कोड। ओके, और जो सर्कल है मैं वो भी दिखा देता हूँ। So this is the circle. Okay. Now I will be performing bitwise not. Not में क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज होते हैं उस पे चेंज होता है, राइट? लाइक 1 0 हो जाता है, 0 1 हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट रेक्टेंगल था उस पे मैंने ये बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया। देखो, CV.bitwise not and I pass the image like the व्हाइट रेक्टेंगल अप्लाई करने के बाद जो इमेज बना उसको मैंने पास कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा इसका आउटपुट कोई बता सकता है? आई विल बी रनिंग दिस कोड, क्या होगा डिफरेंस? I am applying bitwise not on this image, so what will be the difference? But क्या change होगा? Can anyone say? Black Just ब्लैक व्हाइट हो जाएगा और मे बी व्हाइट। correct, very good. So yes, as you said, हाँ, तो I guess समझ में आ ही गया होगा। When you do the not, it gets complemented, so the whites will turn into zeros and the blacks will turn into whites. So yes, here हाँ मैं एक बात बता दूं, इधर मैं सिर्फ बाइनरी कलर्स ही यूज कर रहा हूँ, लाइक सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, बट यू गाइस कैन ट्राई इट विद RGB कलर्स आल्सो। वो तुम लोग खुद करके देख सकते हो इधर, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस ऑल दिस थिंग्स क्विकली, सो आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम दैट। And similarly इधर bitwise and perform कर रहा हूँ। bitwise and I am performing with this bitwise not image, this bitwise not image and the circle, this circle। okay, so bitwise and में क्या होगा? and में तो पता ही है 1 into 1 1 and 1 1 1 and 0 0 and 0 and 0 0। so let's see what happens। yes, so this was the bitwise not। उसके साथ when you ended this, तो ये zeros था, राइट? ये सपोज 1s थे, तो 0 and 1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो और बाकी उसके साइड में ये तो व्हाइट तो 1 ही है काइंड ऑफ, तो वो व्हाइट ही रहेगा और ये ब्लैक हो गया। समझ गए? उसके तरह you have bitwise OR also, you have bitwise OR also actually, but I'm not showing that here। so I guess हाँ, तो तुम लोग खुद ट्राई करके रन करके देख सकते हो क्या होगा, and bitwise OR भी तुम similarly try कर सकते हो। So that's all about the bitwise operations. Anyone has any doubt? Or we'll be moving to the next topic. किसी को कुछ डाउट है? I guess clear ही होगा, ये इतना डिफिकल्ट तो कुछ था नहीं। Okay, I hope it's clear. Thumbs up. Yes. Nice. I guess everyone's clear with it. Okay, so we'll be moving on to the next topic. Now, this is really interesting. Okay, so what is masking? Masking मतलब क्या होता है? तुम जब बचपन में तुम लोगों ने मास्क यूज किए होंगे, राइट? तुम लोग खोटा बोलते हो इसको, हिंदी में मुखौटा बोलते हैं। तो when you wear a mask,
you are basically revealing only parts of your face, like your eyes only or nose only, and covering the other parts, right? So that is what masking means in computer vision. So here, as you can see, the definition is stating segmenting out a specific color from the image. So that is creating a binary mask for that particular color. Okay. तो masking में क्या होता है कि हमें एक particular color या एक particular portion पे focus करने में मदद करता है. It helps the computer and us as well to focus on only a particular portion, which is called region of interest. In computer vision terms, computer vision later on you'll get to you'll come across this term a lot of times. Region of interest, the area or the specific portion of an image that we want to focus on. So that is what masking does. It helps to highlight that area only and like hide the rest of the area. So as you can see, Patrick के ऊपर हमने ये कर लिया. I think इसका नाम Patrick है. I forgot the name. So okay. Okay. Then हाँ उस masking में हम bitwise and ही use करते हैं क्योंकि you guys मतलब समझ ही गए होंगे bitwise and करने पर वो zeros and ones multiply होके hide हो जाता है ना. तो I'll show in the Google क्या होता है. तो हाँ masking में और bitwise and के साथ हम ये भी use करते हैं मास्क बनाने के लिए. cv2.inrange inrange function में हमें क्या स्पेसिफाई करना होता है? We have to specify the image on which we want to apply the mask. We have to specify the lower range of and upper range of color values. हाँ एक और बात मैं बोल दूं, ये जो lower and upper range है, this you try to specify after converting the image into HSV format. क्यों? क्योंकि HSV format में तुम देख सकते हो कि ऑरेंज और रेड अलग अलग शेड्स के होते हैं, राइट? HSV में बहुत सारे अलग अलग शेड्स ऑफ अ सिंगल कलर होता है. ऑरेंज का ही अलग अलग शेड्स, रेड का ही अलग अलग शेड्स तुम स्पेसिफाई कर सकते हो. तो व्हेन यू मतलब उसमें जब तुम HSV में कन्वर्ट करके तुम स्पेसिफाई करते हो तो वो बहुत एक्यूरेट होता है. लाइक different shades of orange, different shades of red, सब कुछ एनएफ पास करता है. So you specify the lower range to upper range of the particular color that you want to stake out. Okay. तो वो numpy array के फॉर्मेट में होता है. पहले बोल देता हूँ. So अभी हम एग्जांपल्स में जाएंगे डायरेक्ट. So yes. हाँ, so इधर there are two ways of masking basically जो मैं इधर शो करूँगा. पहले you can create a mask. Okay, simple mask is quoted through, as you can see. I am creating a circular mask here. This is completely white. This is completely black. And then I'm bitwise ending the images. This is the original image. Okay, that IMG image that you can see here. IMG. This is that image, and this is my mask that I'm creating. So when I bitwise end them, you see that it will hide the other portions and only focus on this region. ये क्यों हो गया? As I told you earlier, and as you guys also clearly stated yourselves, कि ये zeros into anything will get converted to zero, and as this part is totally white, so this into anything will remain as it is. Okay, so it will remain as it is. So okay, so next InRange के through I'll show you InRange. हाँ, InRange helps you to filter out particular colors. यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक स्पॉट को हमने फिल्टर आउट किया, राइट? लेकिन अगर सपोज तुम्हें ऐसा करना है कि एक इमेज में जो रेड कलर है, जितने भी रेड कलर के ऑब्जेक्ट है उनको सिर्फ फिल्टर आउट करना है, तो उसके लिए यू कैन यूज द InRange. तो एज आई सेड InRange का तुम लोअर रेड, हाँ ये देखो, आई एम creating a filter mask for different shades of red. So I specify the lower bound and then upper bound, मतलब lowermost value and uppermost value of the red HSV range. Okay, तो ये तुम Google करके निकाल सकते हो कौन सा रेंज किस कलर के लिए होता है. तो then I'm creating the mask here. Then I'm applying bitwise end. फिर से of course end ही करना पड़ता है mask के लिए. तो I'll show you then what was the result. तो हाँ, so this was the original image, right? So when I applied the mask,
you can see that the red regions are getting filtered out. Okay, the red region just filtered out. अगर तुम हाँ मतलब मास्क ये थोड़ा सा चेंज करोगे तो यू विल सी दैट पूरा अच्छे से पूरा रेड रीजन ही आ जाएगा. इधर मेरे रेंज के कारण इज गेटिंग ओनली सम ऑफ द पार्ट्स, बट अदरवाइज तुम पूरा रेड रीजन जितने भी है यू कैन टेक इट आउट. Okay, so that was all about masking. Basically, segregation of the important part from the part that is not required. So, uske liye you can use masking. So that was all about masking. So, anybody has any doubts, or is it clear? Is it okay, everyone? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. Okay, I think you guys are okay with it. तो मतलब these tricks are really useful क्योंकि वो मैं जैसे बोल रहा हूँ मतलब अभी सपोज तुम्हें एक ब्रेन का इमेज दिया है. फ्रॉम दैट यू वांट टू सेग्रीगेट द ट्यूमर. देयर इज अ ट्यूमर इन द ब्रेन. तुम उसको सेग्रीगेट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम ये सब यूज करोगे, थ्रेशोल्डिंग, मास्किंग एंड ऑल, ताकि वो कंप्यूटर को जो फाइनल चीज मिले दैट इज द ट्यूमर इटसेल्फ एंड नॉट द इमेज ऑफ द एंटायर. ठीक है, अभी तुम खुद तो ढूंढने नहीं लगोगे ट्यूमर कहाँ है, उसको कट आउट कर लो, क्रॉप करो और उसको कंप्यूटर को फीड करो, वो नहीं करोगे, राइट? तो यू परफॉर्म अप्लाई दीज थिंग्स. दिस इज ओनली कॉल्ड इमेज सेगमेंटेशन इफ यू सी. ओके, सो ताकि ऑटोमेटिकली वो हो जाए, वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे डायरेक्ट फोकस चला जाए. तो उसके बाद आई विल बी कमिंग टू दिस टॉपिक, द टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एज डिटेक्शन. ओके, सो हाँ, तो edge detection में I'll be explaining the Canny edge detection only. So there are others as well. You can check it out, but for now you guys just need this. So so I'll be going to the direct collab from there. So edge detection में basically हम ये वाला function use करते हैं cv.canny edge detection के लिए. तो उसमें I'll show here. हाँ, तो ये वाला कोड यूज होता है. cv2.canny लिखा होना चाहिए था, इधर लिखा नहीं है. चलो, cv2.canny लिखा होगा. Then we give the image for which we want to take out the edges. Then we apply a threshold 1 and threshold 2. ये जो threshold 1 and 2 है, इसके बारे में मैं कैसे समझाऊं? हाँ, तो this represents a range from threshold 1, like pixel value range. Suppose 170 to 255 तुमने apply कर दिया. और हाँ, एक और बात बोलूं, इधर भी you have to take grayscale images because edge detection performs much better on single channel image. तो क्योंकि as I said it's much more efficient. सिंगल चैनल जब होता है उसमें तुम ज्यादा अच्छी तरीके से कंप्यूटर वर्क कर सकता है. तो you apply threshold 1 and threshold 2. इस रेंज के threshold 1 और 2 के बीच में जो पिक्सल्स आएंगे, एंड जो मतलब एक इमेज में क्या होता है, बहुत सारे पिक्सल्स मिलके दे कैन फॉर्म अ लाइन, लाइक दैट इज काइंड ऑफ एन एज, राइट? तो अगर पिक्सल वैल्यू ऑफ द पिक्सल्स ऑफ द इमेज इज बिटवीन thresh1 and thresh2, तुम ऐसे सोच सकते हो कि तब उनको नॉर्मल पिक्सल्स बोलेंगे. आई एम coining this term myself, normal pixels, and the edge that they together form will be a normal edge. Threshold 2 से अगर ज्यादा हुआ, that will be a strong edge. Okay, strong edge pixels and they'll form strong edge. And threshold 1 से अगर कम हुआ, those will be weak edges. Those are not at all required. The program will omit those. You can't see those. Those kinds of edges containing these weak pixels will not be shown. तो जो threshold 2 से strong edges है, strong edges के साथ अगर एक normal edge continuum में है, like this is suppose this much is the weak edge, then there comes the strong edge. If they are continuous, attached to linked to each other, then you'll be able to see normal edges together with the strong edges. But agar it's like this, normal edge is like this, then comes a strong edge, then the normal edge will be ignored. And strong edges, they'll always be coming. They'll always be shown. Okay, so let's show you an example of this. So
Yes, I'll run this code and I'll show you what is happening. हाँ तो हाँ उसके साथ एक और चीज था गॉसियन ब्लर. ओके, तो गॉसियन ब्लर क्या करता है, एज आई मतलब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, इट सॉफ्टेन्स द इमेज बाय रिड्यूसिंग द नॉइज, मेकिंग इट लुक स्मूदर बाय ब्लेंडिंग द नियर बाय पिक्सेल्स. तो जब हम कैनी एज डिटेक्शन यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एजेस ऑफ एन इमेज, एज मतलब ये देखो ये थोड़ा थोड़ा एज है, ये मतलब दीज आर एजेस ओनली राइट. ये ना इसके नोज के पास अगर तुम देखोगे ये भी काइंड ऑफ एन एज, दिस दीज आर एवरीथिंग इज क्रिएटिंग एन एज बाय इटसेल्फ. हाउ मच स्मॉल कैन मतलब वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, like it can be really minuscule. You think that this thing is not an edge, but this is by itself creating an edge, right? Because it is a continuous group of pixels, you can say. So canny edge detection जब हम apply करते हैं, wait a minute, one second. Okay, so okay, okay, sorry. हाँ, so Kenny, हाँ, we are short on time actually, so I'll have to speed up a bit, but worry not. Doubts group में भी बाद में I'll explain. So Kenny detection में पहले Gaussian blur use करते हैं, which helps us to do this, like थोड़ा noise reduce करने में मदद करता है by smoothly blending. तुम ये जो Gaussian blur image है उसको तुम प्रिंट करके भी खुद ही देख सकते हो क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, तो इसके ये आर्ग्यूमेंट्स है, वो ग्रे स्केल इमेज ग्रे में कन्वर्ट करने के बाद फिर ये जो 5,5 है वो गॉसियन फंक्शन का तुम्हारा कर्नल है. पहले मैंने समझा था ना एडाप्टिव गॉसियन, उसमें कर्नल्स यूज होते हैं, तो यही 5,5 5x5 का वो कर्नल साइज हम मेंशन कर रहे हैं और ये डिफॉल्ट गॉसियन ब्लर है. ये इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं, तुम यही समझ सकते हो कि इट जस्ट हेल्प्स टू स्मूदन. अकॉर्डिंगली तुम ये सब याद करने का जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो, फिर बाद में तुम गूगल करके यूज करने के समय यू कैन गूगल एंड यूज अकॉर्डिंगली. अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो. ओके, उसके बाद हम कैनी एज डिटेक्शन अप्लाई कर दिए. उसका मैंने आई थिंक बोल दिया था राइट, पैरामीटर्स क्या क्या है, द इमेज, देन द लोअर थ्रेशोल्ड, हायर थ्रेशोल्ड. तो हियर आई एम अप्लाइंग कैनी एज डिटेक्शन ऑन द ब्लर्ड इमेज एंड on the normal grayscale image. तो difference क्या होता है देखते हैं. This was the original image. It's a baby Mufasa. Okay, Mufasa movie आ रहा है ना, सब लोगों को पता होगा I guess. तो this was the grayscale image. This is without applying Gaussian blur and this is after applying Gaussian blur. तो तुम देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा नॉइज है. नॉइज मतलब these are not prominent, right? ये इतना रिक्वायर नहीं है. हमें ये चीज जो मुफासा है वो मेन prominent edges create कर रहा है, तो I want those edges. तो when I'm applying Gaussian blur, then when I'm applying Kenny edge detection, तुम वो main edges को देख सकते हो. ठीक है, तुम ये threshold values जब थोड़ा इधर उधर करोगे और ज्यादा अच्छे से आएगा, but as you can see जो unwanted ये चीजें थी, घास फूस थी, उसके edges से वो हट गए. ठीक है, that was Kenny edge detection. तो मैं contour detection एक साथ समझा देता हूँ, उसके बाद doubts ले लेता हूँ. ओके, तो contour detection में क्या होता है, तो what is a contour? Contours can be explained simply as a curve that joins all the continuous points having same color intensity. मतलब ये जो points है उनको एक साथ अगर ले लोगे, they are forming a continuous curve, right? Closed curve, yes, not only continuous, मतलब वही closed continuous curve अगर form करता है उसको contour बोलते हैं. ये shape अंदर का जो shape है, that circle, this is forming a closed continuous boundary. Okay, that is the difference between an edge and a contour. Ki contours are closed and continuous. Edge, like this is also an edge by itself, but if it is closed and continuous, then it's a contour. Okay, I think that distinction is clear. So here I'll show you the contour detection. हाँ, अच्छा सॉरी, मैं एक बार उसका फंक्शन लिखा था. हाँ, फाइंड कॉन्टूर्स. तो इसका यूज करके भी फाइंड द कॉन्टूर्स ऑफ दैट इमेज. तो यहाँ पे आर्ग्यू दो चीज रिटर्न करता है, कॉन्टूर्स एंड हायरार्की. हायरार्की अभी जानने का जरूरत नहीं, वो यूज भी नहीं होता है, तुम जस्ट ऐसे ही लिख लेना, मैं कोड भेज ही दूंगा, उसमें तुम जब देखोगे समझ में आ जाएगा. इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब तुम्हारे काम का नहीं अभी, तो सिर्फ कॉन्टूर्स है. हाँ, तो cv.find contours, you'll send the image
मोड मोड तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे यहाँ पे आई एम यूजिंग cv.retr एक्सटर्नल, मतलब अलग टाइप के मोड होते हैं। ये तुम्हें याद, ये सब चीजें ना, ये जो टाइप्स है ये याद रखने का जरूरत नहीं है। यू कैन गूगल दीज अप एंड यूज अकॉर्डिंग टू योर टास्क दैट विल गिव यू। ओके, तुम्हें सिर्फ समझना है कि ये चीज काम क्या करता है और वो याद रखना है कि अच्छा ऐसा भी कुछ था, ताकि तुम बाद में निकाल के यूज कर सको। तो दैट इज द मोड एंड द मेथड। मेथड मींस तुम्हें ये कॉन्टूर्स स्टोर कैसे करने, ये जो वेरिएबल है कॉन्टूर्स, उसमें तुम्हें एक ऐसे कॉन्टूर को स्टोर कैसे करना है। व्हेन आई एम पुटिंग cv.chain approx सिंपल, तो इस कॉन्टूर को वो क्या करेगा कि सिर्फ उसके वर्टिसेस लेगा और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स इस कॉन्टूर्स वाले वेरिएबल पे एज अ लिस्ट ऑफ अ सॉर्ट स्टोर कर देता है। यहाँ पे आप भी क्या, सॉरी एरे एरे लिस्ट बोल दिया, सॉरी माय बैड। सो एज एन एरे इट विल स्टोर इट। ओके, तो उसके कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स स्टोर कर देगा व्हेन आई एम गिविंग दिस वैल्यू। आई कैन चेंज इट टू समथिंग एल्स आल्सो, चेन अप्रॉक्स नन NONE। तब क्या होगा कि सारे एक कॉन्टूर्स के सारे जो पॉइंट्स है, सारे कोऑर्डिनेट्स इट विल गेट स्टोर्ड इन दिस कॉन्टूर्स वेरिएबल। और एक इमेज के जितने भी कॉन्टूर्स है, सिमिलरली सभी कॉन्टूर्स के कोऑर्डिनेट्स स्टोर हो जाएंगे। मतलब यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कर्व्स, राइट? तो एक कर्व को जितने भी पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स स्टोर हो जाएंगे अगर तुम चेन अप्रॉक्स नन यूज करोगे। और सिंपल में सिर्फ n पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? तो इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद cv.draw कॉन्टूर्स आ गया। अभी तुम्हें एक इमेज पे, इस इमेज पे इमेज का कॉन्टूर्स तुमने निकाल लिया, कॉन्टूर्स में स्टोर कर दिया। अभी तुम उन कॉन्टूर्स को यू वांट टू शो दोस कॉन्टूर्स ऑन दिस इमेज, राइट? तो for that you'll use cv.draw contours. cv.draw contours will pass the image on which you want to draw the contours. They will pass the attained contours, and this is -1. -1 is basically what, as you can see here, it's the contour index. When you apply -1, when you apply -1, तो basically वो सारे कॉन्टूर्स को ले लेता है, ठीक है? तो वो तुम देख लेना, आई थिंक हाँ सारे कॉन्टूर्स को ले लेता है। तो इसका वैल्यू अलग अलग कर सकते हो तुम लोग। जैसे अगर तुम 0 दे दोगे तो ये जो कॉन्टूर्स का लिस्ट मिलेगा तुम्हें, जहाँ पे हर एक कॉन्टूर्स का कोऑर्डिनेट स्टोर है, उसमें से सिर्फ पहले कॉन्टूर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और फिर सिर्फ वो ही ड्रॉ हो जाएगा। अगर तुम इधर 0 दे दोगे तो यहाँ पे सिंस यू आर पुटिंग -1, सो all the obtained contours will be appearing on this. Then you'll write this, which is the color of the contour that you want to show. I am writing 02550 means green, and then when this is this parameter was thickness. Yes, thickness. वो जो contour create होगा उसका thickness कितना होगा, that you'll be specifying it. 1 दिया है मैंने, तुम 2 भी दे सकते हो। थोड़ा सा मोटे lines, thicker lines will be drawn. Okay, I'll be running this and showing. So yes, this was the image. This was the grayscale image. Here also you should convert to grayscale, and here you should apply Canny as well to get a binary image, because contour finding भी वही है ना कि distinguish करना है। तो as I said earlier also, computer is much more efficient when it deals with binary images. So Canny जब करेंगे तो binary image मिलता है, like you know, we get a binary image, zeros and ones. So we'll get a binary image here, and here मैंने लिख भी दिया finding contour source pattern binary images obtained through thresholding and Canny. उसके ऊपर हम ये grayscale हमने पहले इधर grayscale कर दिया, grayscale के ऊपर Canny अप्लाई करके उसके ऊपर हमने ये अप्लाई कर दिया contour। और तुम्हें दिख रहा होगा, I guess all these contours are there, and जैसे मैं चीज दिखा दूंगा, ये रिटर्न एक्सटर्नल के जगह व्हेन आई एम पुटिंग एक्सटर्नल, राइट, रिटर्न एक्सटर्नल, तो ये सिर्फ आउटर मोस्ट बाउंड्रीज मतलब कॉन्टूर्स शो करेगा। तो इट विल शो लाइक एज यू कैन, ये जो एक कॉन्टूर है, इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी एक अपना कॉन्टूर है, राइट, बट इट्स नॉट शोइंग दैट बिकॉज आई हैव स्पेसिफाइड RETR external. But if you put RETR list, these you will just as you use, you'll remember,
you don't have to remember by yourself now. So if I use RET list and run it, I'll show you. So now you can see that these inner contours, like it shows all the contours, not only the outermost contour. All the contours are now appearing. So that was all about contours. Now, using the contours that you got stored here, you can like you are getting the coordinates of those contours, right? So using that, you can do segmentation. Like you can segregate out parts. There are various methods how to do that, but we'll not be focusing too much on that. As you use, you'll get to know. So yes, that was all. Does anyone have any doubt? From both the contours and edge detection combined, does anyone have any doubt? Or are you clear with it? Like, अभिनव एक बार पीपीटी में वो सीएन कंप्यूटर विजन वर्सेस ओपनसीवी वाला पीपीटी निकाल लो ना. I'll be doing that, but let me first clarify. I guess everyone is clear. You can give a thumbs up if you are clear with it. Okay. 5, 6, 7, 8. Okay, I hope you guys are clear. If you're not been able to understand something or you are not clear with something, you can ask. Don't worry. हम अभी अगर तुम reach out नहीं कर पा रहे हो, like you guys someone maybe reach out here. अच्छा, width of contour. As I said, thickness वाला जो argument है इधर. There is a thickness argument, right? This changes the width of the contour. Yes. So as I said, किसी को अगर बाद में भी पूछो, you guys can reach out to us in the WhatsApp group. Okay, so yes, now let's move on ahead. This is a part. शिवम, भाई सबको समझ आया होगा बहुत, और कि बहुत को बाउंसर भी गया होगा. ऐसा है कि कोई क्या जिसको बहुत कम समझ आया हो, जो पाइथन में नया है? लाइक हमें भी पहली बार ऐसे समझ नहीं आया था, क्योंकि ऐसा नहीं है. ये मत सोचना कि मतलब मुझे समझ नहीं आया कुछ, तो ये क्या मतलब कैसे हो. हमें भी पहले मिला था, तो it was daunting for us as well. तो don't be shy. मतलब अगर कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो बेझिझक. We'll clarify. Don't worry. ठीक है, ग्रुप में या फिर पर्सनली यू कैन डीएम, वी विल आंसर योर क्वेरीज. ओके, बट सी अभी तक हमने ओपन से भी पढ़ा, बट बहुत लोग तुम मशीन लर्निंग वगैरह भी स्टार्ट किए हो या फिर करने का सोच रहे होगे. ऐसा कोई है जो मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड है अभी, या डीप लर्निंग? ओके, सो बेसिकली फील्ड है कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा फील्ड है, बट ओपन सी भी a tool to perform some operations, but computer vision is a very big field, जहाँ हम जैसे कि जो भी ऑटोनोमस कार्स भी होते हैं, उनमें भी कंप्यूटर विजन का एल्गोरिथम से काम करता है. मतलब उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रेन दोज images, train those algorithms on some images or some video input that that the car is moving. See, this is a traffic light, how this looks, are the contours. So there we use the OpenCV functions, but computer vision is a very big field where we explain the algorithm, we train the algorithm how to think itself, how will it think itself, that whether it is there is a man standing in front of a car, if we are talking about autonomous cars. So computer vision एक बहुत बड़ा फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, एंड OpenCV कंप्यूटर विजन सेम नहीं है. OpenCV एक टूल है एंड कंप्यूटर विजन एक डीप लर्निंग का बहुत बड़ा फील्ड है. तो बहुत लोग तुम लोगों में से आगे जाके वो परसू भी करने का ट्राई करोगे, क्योंकि वो भी बहुत फैसिनेटिंग फील्ड है. एंड इवन बड़ी बड़ी कंपनीज टेस्ला वगैरह कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स को हायर करती है. तो आई गेस तुम्हें आगे जाके इसमें इंटरेस्ट आएगा. बाकी और भी कोई डाउट्स हो तो पूछो, नहीं तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन इन द ग्रुप और इन डीएम्स. ओके, एक और चीज मैं बोल देता अभी.
like tab we refrained from that delving into this CNN topic. Someone, I guess, okay, that guy was maybe like a miscreant because he was just sending weird messages, but he did raise a good question. What is a CNN, right? So CNN basically stands for convolutional. We delve right now, you'll guys get really confused. So we are refraining from that, but यही बोलूंगा कि जो कंप्यूटर विजन का बेसिक चीज है, what we call a neural network, that is kind of it's a type of it, CNN, convolutional neural network. There are various types like RNN also. Okay, so उसमें क्या होता है कि एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? It's a digitalized like representation of a human nervous system or human brain, तुम बोल सकते हो. मतलब कंप्यूटर खुद से कैसे चीजों को कर सकता है, खुद से कैसे सीख सकता है, उसका ही एक जरिया है. इट्स अ वे ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर लर्न थिंग्स, टीच अ कंप्यूटर टू डू थिंग्स एंड लर्न थिंग्स ऑन इट्स ओन एंड मेक इट ऑटोनोमस. तो अभी उस पे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, तुम लोग यही ऊपर ऊपर से समझ सकते हो कि न्यूरल नेटवर्क, CNN, कन्वोल्यूशन न्यूरल इज अ grasp and learn things by itself and perform actions on its own. ये हम लोग जो आगे हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें समर कैंप्स वगैरह, उसमें इसमें इस टॉपिक में ज्यादा डीप में जाएंगे, तब तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है. तो दैट इज ऑल. बाकी हम लोग इस वर्कशॉप के जस्ट बाद टास्क रिलीज करेंगे जो ओपनसीपी पे पूरा बेस्ड होगा, एंड देन अगेन एक और वर्कशॉप होगा तुम लोगों का 5 बुलेट का, उसके बाद भी तुम्हारा टास्क आएगा, देन लास्ट में एक फाइनल टास्क आएगा जो दोनों का कंबाइंड होगा. तो नेक्स्ट वर्कशॉप भी अटेंड करना एंड फोकस करना. एंड तुम्हें सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग इसी पीपीटी या फिर इन्हीं कोड्स पे रिलायबल या फिर रिलायंट रहो. तुम लोग यूट्यूब पे और वीडियोस देख सकते हो, अगर कुछ समझ ना आया हो, या फिर इस वीडियो को अगर हम लोग रिकॉर्ड्स शेयर कर पाए तो रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, वापस देख सकते हो. ठीक है, बाकी डाउट्स हो तो पूछ लेना ग्रुप पे अभी के लिए, और किसी को कुछ शेयर करना तो. एंड वन थिंग आई से दैट जो हमने इमेजेस यूज किया है अभी तुम लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो वो इमेजेस अगर हम ये कोलैब नोटबुक शेयर भी कर दे, दे विल नॉट बी विजिबल टू यू. ओके, तो क्योंकि वो सिर्फ हमारे पास ही है, तो आई विल जस्ट शो यू वन थिंग हियर हमने वो इमेजेस इधर कोलैब में अपलोड करके उनको यूज किया था, राइट? यहाँ पे हाँ, आई एम रीड में जो इमेजेस थे, तो वो तुम अपने खुद के इमेजेस डाल सकते हो, खुद डाउनलोड करके उनको कोलैब में अपलोड करके. यू जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर इंस्टेड ऑफ दिस थिंग एंड देन यू कैन यूज. ओके, सो वो तुम लोग खुद करके देख लेना. सो और आई वुड से दैट अगर अच्छे से सीखना हो, लाइक कुछ डाउट्स वाउट्स निकले करते समय, तो instead of relying on ChatGPT to solve each and every question that you get, you can use it to learn. Okay, कि एक टॉपिक है जो मुझे समझ में नहीं आया अच्छे से, या उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है, तो that specific query if you try to clarify through ChatGPT, that's a much better thing instead of just finding out solutions or problems directly. तो वो करके खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करना जो हम टास्क देंगे, क्योंकि मुझे पता है एटलीस्ट 1 or 2% तो विल गो फॉर ChatGPT, but I'd say please try to just inculcate the information and then try on your own. Don't try to use it directly. लाइक हम जो तुम्हें टास्क देंगे उसका भी कोड तुम्हें ChatGPT या फिर कहीं से तुम लोग ले सकते हो, बट हाँ, you guys can make, but we'll put like if you really want we'll to put up learn, plagiarism check on all of those. AI detector हम अप्लाई करेंगे, तो अगर कोई करेगा भी तो पता तो चल ही जाएगा वैसे. तो but if you want to really learn, try to implement yourself. You can take help from documentations. You can, instead of just watching hour-long videos on YouTube, you can also just search for documentations on Google. Very nice documentations will come because already you have quite a base from this workshop. Okay,
So now you can just, if you have doubt in any particular topic, you can search that on Google, and a nice documentation will come where you will understand each and every parameter will be given. Okay. So that's it from our side. We will meet again in the next workshop, and keep your enthusiasm while doing the tasks also. Okay. Bye bye. Acha, wait, someone had a doubt. Acha, I think someone raised the hand. Okay, I think it was just when. Okay. Chalo. Bye bye. ठीक है. Thank you. Bye bye. Bye. Okay.